मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज द सेम एनालॉग टू ई वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सेम वैसे ही है, राइट। इनसाइड एन एयर कोर solenoid, inside an air core solenoid, B naught is equal to mu naught n I, that is simply okay, ये हमने पढ़ा है। if a magnetic material, if a magnetic material is placed inside solenoid, then material get magnetized, and magnetic field induces inside material, called as induced magnetic field. Induced magnetic field. B M. Right. The net magnetic field of solenoid, the net magnetic field of solenoid with material core ये किसके था? एयर कोर। ये था जब एयर कोर थी एंड हमने मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया तो अब मटेरियल कोर हो गई, यानी कोर में मटेरियल है। विद मटेरियल कोर इज वेक्टर सम ऑफ बी नॉट एंड बी एम, दैट इज B is equal to B naught plus B M, where B is equal to mu n I, and mu is called magnetic permeability and mu is called magnetic permeability of material, right? समझ गए? बहुत सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है। एक सोलेनॉइड एयर कोर, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट कितना? म्यू नॉट एन आई, where mu naught is magnetic permeability of free space. If we place the material inside, then B is equal to mu Ni, where mu is magnetic permeability of material. ठीक है? Why the magnetic field change? Because one is the applied field due to solenoid and another is induced field inside material. So the net field will become the sum of the two, vector sum of the two, right? Is it clear? कुछ पूछना है? नहीं। करें स्क्रीन चेंज? हो गया ये? इधर ऑनलाइन हो गया क्या? ये थी आवाज तो, राइट। नाउ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब वही चीजें हैं ऑलमोस्ट सेम जो उसमें होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस ये परमीएबिलिटी होता है, वो परमिटिविटी होता था। म्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? इट इज व्हाट? इट इज रेशियो ऑफ
magnetic permeability of material mu to magnetic permeability of free space. The ratio of the two, that is mu r is equal to mu upon mu naught. Okay. Magnetizing force. Magnetizing force H. For air core solenoid, B naught is equal to mu naught Ni. For material core solenoid, B is equal to mu Ni. The term Ni is called magnetizing force. Is called magnetizing force H. That is H is equal to Ni. What will be the unit? Ampere टर्न पर मीटर, राइट. एंड टर्न को आप यूनिट में यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है. और यू कैन राइट एम्पियर पर मीटर, राइट, और एम्पियर पर मीटर, बिकॉज एन इज व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज व्हाट करंट. ठीक है. एक काम कर लो छोटा सा, ये जो आई है ना इसको छोटा कर दो, क्योंकि एक बड़ा आई और आएगा. बस इसको स्मॉल आई कर दो, क्योंकि एक बड़ा आई और आएगा सिस्टम में. वो तो कोई नहीं, वो तो चला गया ऊपर, जाने दे, वो तो दूर चला गया. हाँ, नहीं, आई बहुत सारे होते हैं, डोंट मिक्स अप दैम. एक आइसक्रीम होता है. हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली. देखा, इसको याद आ रहा है कुछ कुछ. पिछली हो गया. दैट इज एम्पियर पर मीटर. क्लियर. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और ये ना टर्म्स बहुत सारी कंफ्यूजिंग सी हैं. तो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ये बी है कि एच है कि क्या है. तो फिर यूनिट से आइडेंटिफाई करो. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट. व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन a material is placed in magnetic field, when a material is placed in magnetic field, it get magnetized. The extent to which material is magnetized is called intensity of magnetization.
is called intensity of magnetization, I. Mathematically, स्पेलिंग क्या होती है? टी आई। अब ठीक है, अब बस आता है मेरे को, रहने दे। हाँ, मैथमेटिकली it is measured as dipole moment induced per unit volume. I is equal to m by v, right? Unit is same. Unit is same as of h, that is ampere per meter. हो गया? Magnetic susceptibility. It represents ease of magnetization. It represents ease of magnetization. That is, psi is equal to I by h. And it is dimensionless and unitless. क्यों? I और h की यूनिट सेम, I की यूनिट भी सेम, I और h दोनों की यूनिट सेम, तो इट इज डायमेंशनलेस या यूनिटलेस. ओके, इतना क्लियर? Relation between mu r and psi, relative magnetic permeability and susceptibility, right? B is equal to B naught plus BM. ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा. ठीक है, दोनों, एक कौन सी है? अप्लाइड फील्ड और एक इंड्यूस्ड फील्ड. नाउ B इज इक्वल टू म्यू एच, ये भी पढ़ा, म्यू एन आई, और B naught is equal to mu naught H, and BMI is equal to mu naught I, because it is induced field. Induced field is related to intensity of magnetization, right? Then mu is mu R mu naught, ये भी अभी पीछे पड़ा था. सारे mu naught कैंसिल, h से डिवाइड कर दो, 1 प्लस आई बाई एच, एंड आई बाई एच इज व्हाट? ससेप्टिबिलिटी.
क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, दुखी मत होना, बट एक्चुअली मुझे पता नहीं है ये सब सिलेबस में है या नहीं, ठीक है, बिकॉज बहुत क्लैरिटी नहीं है सिलेबस में इसके बारे में, तो मैंने करा दिया। मतलब देख लेना, ओके, क्योंकि छोटा सा था एंड आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि ये सब सिलेबस में है या नहीं, तो मैंने कहा करा देना बेटर है, ओके। बाकी स्कूल से चेक कर लेना, स्कूल वाले कराएं तो ठीक है, नहीं कराएं तो ठीक है, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो पढ़ लेना, ओके। हो गया ये, राइट। बट द नेक्स्ट पार्ट इज़ डेफिनेटली इन सिलेबस, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैथमेटिकल पार्ट था, बाकी सब कुछ है, ठीक है। देयर आर ओनली टू थिंग्स विच आई डाउट इफ इट्स इन सिलेबस और नॉट। वन, एक जो हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट, और एक ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट, करेक्ट। मैग्नेटिक मटेरियल, due to a spin motion and orbital motion, due to spin motion and orbital motion of electron, atom possesses dipole moment. Atom possesses dipole moment. This atomic dipole moment, this atomic dipole moment is vector sum of dipole moment of all electrons, of all electrons, spin plus orbital. राइट, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, those electrons are revolving and in orbital motion and in spin motion, and because of their motion they have some dipole moment. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है और जिनके उनके जितने भी मोशन है, उससे जितने भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुए उन सब का सम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक डायपोल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, on the basis of atomic dipole moment, material are classified as diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Right? ये तीन टाइप के मटेरियल. Now we have to study about all the three and that's what all in the chapter. ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. पहले का भी बहुत बड़ा होता था लेकिन बहुत सारे पीसेस इसके रिमूव कर दिए. हो गया, तो मैं ये भी रिमूव कर देता तो कुछ भी नहीं बचता. Now diamagnetic. इन ब्रीफ शॉर्ट में लिखूंगा, मतलब समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आए तो पूछ लेना.
ठीक है, जीरो एटॉमिक डायपोल मोमेंट। इनका नेट एटॉमिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। ठीक है, when placed in magnetic field, dipole moment induces when placed in magnetic field, dipole moment induces due to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। Right? It is like this, B naught, and this is B m. Net field inside B less than B naught, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस है। समझ गए? सो डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं? जिनका परमानेंट एटॉमिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं। दैट इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैम। हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? जो अपोजिट मैग्नेटाइज होगा वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ वो या तो पैरा है या फेरो है। फिर वो कैसे आइडेंटिफाई होगा पैरा और फेरो में? जो स्मॉल मैग्नेटाइज हुआ वो पैरा है, और जो लार्ज मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक। परमानेंट atomic dipole moment is small। permanent atomic dipole is small। ठीक है, these atomic dipole in material are randomly placed so in general dipole moment of material is जीरो। हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है, बट वो रेंडमली प्लेस है, तो पूरे मटेरियल का डायपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो। राइट? When placed in external magnetic field, these atomic dipoles align themselves in direction of field
in direction of applied field and they get weakly magnetized weakly feebly, एक ही बात है ना, बहुत कम, and they get feebly magnetized in direction of applied field. अंडरस्टूड. डायामैग्नेटिक में क्या था, जीरो डायपोल मोमेंट था. जब उनको फील्ड में प्लेस किया तो एक डिफरेंट फिनोमेना, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे की वजह से डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था. पैरामैग्नेटिक में स्मॉल एटॉमिक डायपोल मोमेंट था, बट वो रैंडमली प्लेस थे तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया था. जब हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो वो अलाइन हो गए तो एक नेट डायपोल मोमेंट आ गया या वो मैग्नेटाइज हो गए. बट दिस मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्मॉल. ओके, दैट्स कॉल्ड फीबली मैग्नेटाइज्ड. करेक्ट, डन. अबे थोड़ा सा, ये तो किताब खोल के देख कितना बड़ा है उसमें. पहले तो एनसीईआरटी में इतना बड़ा है, मैंने नोट्स में इतना किया, अब इतना कर दिया, फिर भी कुछ तो रहेगा ना काका. ठीक है, हो गया. मैं वैसे ही लिखने में आलसी हूँ, सोचो मेरे को पूरी क्लास में लिखना पड़ रहा है. ठीक है, मेरा बस चले तो मैं बैठ के डिक्टेशन दे दूँ, लिखो. वो जैसे बायो में देते रहते हैं डिक्टेशन. फेरोमैग्नेटिक, atomic dipole moment is large. Dipoles of same direction grouped to form domain. ठीक है, so what is domain? Group of atomic dipole in same direction, right? Material is divided in large number of domains with random direction. जैसे उसमें इंडिविजुअल एटम थे रैंडमली प्लेस्ड, इसमें डोमेन रैंडमली प्लेस्ड है with random direction. So in general, atomic dipole moment, so in general atomic dipole moment of material is 0. Right? When placed in magnetic field, domain align in direction of field, domain align in direction of field and material get strongly magnetized
and material get strongly magnetized in direction of field. Right? आयरन, स्टील, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट वही है कि एक फोबिया होता है, लेकिन केमिस्ट्री आती है ना, मैं अंदर से कुछ कुछ होता है और फिर मुझे लगता है मैं गलत बता दूंगा, तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। शुरू तो होता हूँ बट फिर डर लगने लगता है, फिर चुप हो जाता हूँ। आई थिंक निकेल, कोबाल्ट, आई थिंक, नॉट श्योर। ठीक है, आयरन में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, ठीक है, हो गया। राइट, ये थे 3 डिफरेंट मटेरियल। 1, कैसे क्लासीफाई हुआ और कैसे वो मैग्नेटाइज होते हैं, मटेरियल एंड देयर मैग्नेटाइजेशन, नाउ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, उसमें सारे एक साथ लिखते हैं, ठीक है, तीनों मटेरियल का, फटाफट फटाफट खत्म। राइट, चलो शुरू हो जाओ। प्रॉपर्टी यानी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एंड मैं ब्रीफ में लिखूंगा, समझना तुम्हारा काम है। देन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, परमानेंट एटॉमिक डायपोल मोमेंट, 0, स्मॉल, लार्ज, राइट, जिससे ये क्लासीफाई हुए। ठीक है, in front of a magnet, किसी मैग्नेट के सामने रखा तो, ठीक है, feebly repelled, feebly attracted, strongly attracted। समझ गए? लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई ए मटेरियल, कौन सा है, किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के सामने उसको रख दो, अगर वो स्लाइटली रिपेल हुआ तो डायामैग्नेटिक, स्लाइटली अट्रैक्ट हुआ तो पैरामैग्नेटिक, और एकदम से भाग गया तो फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो रियल मैग्नेटिक मटेरियल आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो इन रियल मैग्नेटिक मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। करेक्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, मूव फ्रॉम वीक to a strong field,
ये बेसिकली सेम प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन की। रिपल्शन में किधर जाएगा मटेरियल, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, और अट्रैक्शन में किधर जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। अट्रैक्शन में पास आ रहा है तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आ रहा है, और रिपल्शन में दूर जा रहा है तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। देन सेम, राइट। A rod of material in uniform field, अगर एक मटेरियल रॉड यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दे, डायमैग्नेटिक मटेरियल की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है, तो देन स्टैंड्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर स्टैंड करेगी, राइट। अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेम। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जो ये मैग्नेटाइज हुए वो टेम्परेचर पे कितना डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपरली नोट्स में लिखे हुए हैं, ये एक सिंपल सा टेबल है, सो दैट यू कैन क्विकली फाइंड आउट क्या क्या है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंडिपेंडेंट, decrease with increase of temperature, and this also decrease with increase of temperature above Curie temperature, behave as पैरामैग्नेटिक, यानी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इतना बढ़ा दो कि वो क्यूरी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, कि अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हो गया then they will start behaving as paramagnetic material, because then what will happen, their domains will break and there will be individual atomic dipoles, right? Clear? Now susceptibility minus 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 3, negative, right? Negative and very small. This is same but in positive, and this is very large, 10 to the power 3 to 10 to the power 5. Mu r, yes, क्यूरी टेम्परेचर एक टेम्परेचर कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, हर एक मटेरियल के लिए डिफाइंड है टेम्परेचर, ओके, उस टेम्परेचर के ऊपर दैट वाज डिफाइंड बाय द मैडम क्यूरी, ठीक है, वो साइंटिस्ट थी,
ठीक है. सो दैट वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय मैडम क्यूरी और उन्होंने डिफरेंट मटेरियल के लिए एक टेम्परेचर डिफाइन किए. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट बिहेविंग एज पैरामैग्नेटिक. म्यू आर लेस देन 1, राइट. एंड रिमेंबर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्सिलॉन आर हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होता है, यहाँ 1 से कम हो सकता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज लेस देन अप्लाइड फील्ड. यहाँ पे इनसाइड मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में बी लेस देन फील्ड अप्लाइड फील्ड और ग्रेटर देन अप्लाइड फील्ड, राइट. दिस इज ग्रेटर देन 1 and this is much greater than 1. राइट. इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ पूछना है? हाँ नहीं है, 2 लॉ हैं वो लिख लो. हाँ हाँ टेबल खत्म हो गया. Curie law. Curie law. Intensity of magnetization यानी मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ I is directly proportional to applied field and inversely proportional to temperature. And inversely proportional to temperature. That is I is equal to I proportional to B naught by T and proportionality sign हटाया तो C B naught by T. C is Curie constant. ठीक है. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज राइट. अगर हम आयरन के लिए बात करें तो इट इज समवट 500 समथिंग डिग्री सी होता है अप्रोक्सीमेटली. मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज with increase of temperature above Curie temperature. They behave as paramagnetic. Susceptibility in paramagnetic phase.
यानी जब अबव क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, C अपॉन T माइनस TC, दिस इज आफ्टर क्या है, पैरामैग्नेटिक फेज, ठीक है। where T is temperature, पता नहीं क्या होता है, मतलब मैं इतनी देर से टेम्परेचर लिख रहा हूँ एकदम से भूल जाते हैं। where T is temperature, TC is Curie temperature and C is Curie constant.